All right, we're live. Assalamu alaikum, everybody. Welcome to PSL Nama at DN Sport. I'm your host, Vikas. I have with me Hassan Bhai and Shafkat, and we're going to cover the Peshawar Zalmi versus Islamabad United qualifier, eliminator game. Sorry, apologies. For सबसे पहले तो to Peshawar Zalmi fans, congratulations, right? Great game, great comeback by Peshawar. I mean, they were completely out of it going into the 15th over, but some beautiful bowling by Amir Jamal and Salman Irshad to bring them back. यहाँ पे ट्रेडिशन है कि विनिंग टीम के जो फैन होता है उसकी तरफ हम जाते हैं, बट बिकॉज पेशावर जर्नी के डाई हार्ड फैंस हमारे पैनल में नहीं है, we'd flip the switch and we'd go to हसान भाई ताकि उनके गम आवर का थोड़ा जायजा लिया जाए कि क्या हो रहा है अभी उनके साथ, क्योंकि वो इस्लामाबाद की जो है बहुत मतलब सीजन 1 से फैन है. तो हसान भाई, if you can break it down for the audience, for us, how Islamabad fans are feeling right now, especially those that probably thought कि जीत जाएंगे आज का गेम, हम फिर हार गए. So over to you, your thoughts on the game. Yeah, I think it was a good match, close match finally, like कल की तरह का नहीं था. And the good thing is कि the best thing out of this is कि at least my prediction came out right, जो मैंने कल रात predict किया था शो पे. Yes. So the prediction was कि बाबर आजम अच्छा करेगा, he'd take it deep, he'd probably be the difference at the end of the day, but the bowlers came to the party as well. Right. I think जो शादाब का decision था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा, I mean it's a little controversial because in this ground you always if you win the toss you tend to bat first and you make the team chase. Last record भी यही कहता है कि teams chasing struggle and he put in Zalmi to bat first. I think the reason he did that was because उसको पता है Zalmi की bowling is not their strongest suit. हम जब पिंडी में मैचेस हो रहे थे तो हम ये कहते हैं कि ज़ल्मी जब हार रहा था तो maybe they should look to chase because batting is their strong suit. Right. But I think they were like, so till the 13th over Zalmi was playing as if they would cross 200. मतलब बहुत अच्छा जा रहा था. 220, even 220 was on the board. हाँ, easy. और मोहम्मद हारिस भी परफेक्ट टाइम पे आया था, प्लेटफॉर्म सेट था, इट वाज ऑल गुड फॉर देम टू गो ऑल बिग. मोहम्मद हारिस तक अच्छा खेले, फिर टीकेसी और जिमी नीशम जब आए ना तो थिंग्स वेंट एकदम से ना हॉल्ट लग गया उनकी में. सो लास्ट 7 overs आई थिंक दे गॉट अराउंड 47 runs which is absurd. T20s में अगर देखा जाए, I mean it should be the other way around, right? और फिर when United came into bat they went off to a flyer. हमने शोएब मकसूद की भी कल बात की थी कि या तो वो डॉट्स करेगा या वो मारेगा, और वही हुआ. या मारेगा. Yeah, he played a lot of dot balls, but then he used to make आखिरी ओवर की like 4 डॉट्स करके एक छक्का चौका मार देता था. He was going at over 10, so he was keeping up with the rate. But उस तरह से हुआ ये कि जो उसका पार्टनर था वो initially set नहीं हुआ, but then he did eventually start hitting out. Alex Hales जो था काफी देर तक Alex Hales was like on 1 off 1. तो but then it was always going to be कि जैसे ये दोनों आउट हो गए तो वही टेम्पलेट दोबारा फॉलो होगा जो ज़ल्मी के साथ हुआ. और हमने ये देखा 13th ओवर के बाद at the 13 over mark Zalmi was still ahead from where United was. I think at the 13 over mark Zalmi was at around 137 and शायद यूनाइटेड 110 आउट पे थे. सॉरी. सो एंड में लग ये रहा था कि यार अभी तक कंडीशंस तो चेंज नहीं हुई, शायद यूनाइटेड जीत जाए. बट प्रॉप्स टू आमिर जमाल एंड सलमान इरशाद. आमिर जमाल ने क्या बॉलिंग कराई है यार. यार आमिर जमाल, एक तो आमिर जमाल की मुझे ये चीज अच्छी लगती है यार, उस लड़के का ना लाइक बॉलिंग कराना ना डेथ में दिल आपका इतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एवरीबडी इज लाइक गोइंग फॉर लाइक हेल टू लेदर, राइट? और आप एलिमिनेटर खेल रहे हो तो उसमें तो जाएंगे ही जाएंगे. बट टू देन एक उसने बॉल शुरू में उसने बॉल कराई थी, मुझे अच्छी तरह याद है. ही बॉल्ड लाइक अ बॉल जो वो यॉर्कर करने जा रहा था, बट लाइक इट डिडंट गो टुवर्ड्स यॉर्कर. वो नी हाई फुल टॉस हो गई थी, उसको चौका पड़ा था. एंड बाबर केम टू हिम प्रीटी लाइक पिस्ड के यार क्या कर रहा है. देन getting reprimanded on that, he was like कि नहीं,
यही मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसी से ही बॉलिंग कराऊंगा. तो द थिंग That shows दैट character. That shows character because he दैट had a shows character. plan in Yeah, his. Or it would exactly. have been really easy at that. Like props to Babar as well. It would have been really easy to panic and go with Wahab. हालांकि So Wahab तो बढ़िया है. And he didn't and do even that. Sammy was saying, yeah, even Sammy was saying from the dugout कि Um, वहाब के लिए जाओ, but he didn't go to Wahab, he went to Amir Jamal. And the best part is कि मैंने बहुत दिनों बाद, like probably after years, मैंने proper reverse swing देखी है किसी T20 के गेम पे. अब I'm not gonna say कि ये कैसे हो रही थी, because that's another debate, right? But like this is what I was looking for यार, कि मतलब yes. Square 145 पे. so if we keep it legal, square काफी बड़ा है. बहुत बड़ा square है. हाँ, Square यार actually. I'm not gonna go into that. हाँ लेकिन हाँ ठीक है. But एक चीज और सलमान इरशाद पे it like आमिर जमाल का जो स्पेल था ना, आई थिंक एंड ऑफ द मैच की जब आप स्कोर कार्ड पढ़ोगे तो लगेगा ये कि सलमान इरशाद ने बेहतर बॉलिंग की, बट आमिर जमाल टर्न द टाइड बिकॉज उसने आउट किया सोहेब मकसूद का, एंड सोहेब मकसूद वाज बैटिंग वेल. आई वो टर्निंग पॉइंट वही था. और फिर एलेक्स हेयर्स, ये जो दो बैट्समैन सेट थे जिनको उसने आउट किया और एफर्ट बॉल्स के साथ किया. एंड the thing is कि till now we had seen him come and whack a few with his batting, but आज उसने proper bowling कराई है. And even like एक पे तो वकाई यूनुस on air admitting कि यार this is as good as I would get. मतलब जो उसने एक शादाब को बॉल कराई जो it went between his legs, I think उस पे उसने कहा था. But having said that, I think it's जल्दी फाइनली बॉलिंग का कुछ बैलेंस उन्होंने फिगर आउट किया थोड़ा सा. इस चीज को what helped them was कि they were bowling second. Wahab Riaz was the weakest link in their bowling. I think Wahab was the only one who went over at 10. Around 14 पे गया है Wahab. yeah. And Babar, अच्छा हम इसकी बात करते हैं. I want to come to Shafkat, right? And Yeah. I mean, because Shafkat covers domestic and everything, right? He kind of like has his pulse on most cricketers. Shafkat, like Amir Jamal, born in Miawali, raised in Rawalpindi, right? Plays for Northern, second 11 से होते हुए आया, right? मैंने एक ट्वीट की थी कि ही इज बेसिकली द रजाक दैट वी वर लुकिंग फॉर इन द लास्ट 10-15 years, राइट? और तुमने इसका जो है डोमेस्टिक ऑब्वियसली देखा होगा पूरा. आई मीन लाइक आई वुड क्या कहते हैं थिंक कि तुमने फॉलो किया होगा, क्योंकि ये बड़ा जो है इसको आइडेंटिफाई बड़ा अर्ली किया था सेकंड 11 में कि ये बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है. तो थोड़ा ऑडियंस के लिए बताओ कि व्हाट मेक्स आमिर जमाल the best proposition, fast bowling all-rounder proposition in Pakistan currently. क्यों इसको लोग इतना रेट करते हैं हार्डली? What does he have that makes him, that gives him that X factor? यार यू सी जब आमिर जमाल सेलेक्ट हुआ था पाकिस्तान टीम में अगेंस्ट इंग्लैंड, जब 7 मैच T20 सीरीज थी, तो एट दैट टाइम सो मेनी पीपल वर लाइक कि ये कौन आ गया है लाइक टीम में. बट वी सो कि नॉर्मली पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स आते हैं एट द एज ऑफ लाइक 22, 23, 24, 25. ही वाज अराउंड 25, 26. अभी भी 26 साल का है. और उसके एक दो इंटरव्यूज जो शुरू में सुनने वाले थे, ही हैज कम थ्रू अ लॉट. मतलब दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. आगे दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी मैं जाता हूँ. वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज that he has explored not just himself, his skills, but the struggles that come towards a cricketer, especially while making your name in Pakistan, stamping your authority across various levels in Pakistan. So एक तो he has beaten those odds while working his way up. Secondly, I was saying that he's a very mature man. Like he has got a working brain, and at this point in his life, like he attributes a lot of his success that come. Like I would really sound stupid to come up with this point or draw this parallel, but I would love to have this stat, or like people talking about how the lives of so many players have changed when they have got this perspective of family in their mind, and that perspective of family begins when you get married, right? We see Virat Kohli is a different man post his marriage. Yes, he's been performing all his life, but there are certain performances that come in a different manner from you.
Surya Kumar Yadav on the record himself says कि like there was a time when I got married and then we sat together. We sorted out what we are going to do. We made a plan. Ranji में क्या करना है, विजय हजारे में क्या करना है, how am I going to deal with my life, and that kind of catapulted him into what we are seeing the sky today, and that took around 4 5. And Amir himself on the record, he too says this that outside of the cricket ground, yes, inside of the cricket ground में आऊंगा उसकी बातों पे जो उसने पिछले 3 साल में प्रोग्रेस की है, बट आउटसाइड ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो मेनी प्लेयर्स. देखो पैट कमिंस ने पुल आउट कर लिया था बिकॉज देयर वाज समथिंग रॉन्ग एट हिज होम, राइट? लाइक ऑल आवर सिंपैथीज एंड प्रेयर्स आर विद हिम. बट व्हाट हैपेंस आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि आपने थोड़ी सी उस पे इलैबोरेट पूछा कि व्हाई इज आमिर जमाल द कैरेक्टर दैट वी सी ऑन द ग्राउंड, जिसने इसी ग्राउंड पे मोइन अली के खिलाफ भी कले, मोइन अली के खिलाफ भी आखिरी ओवर बचा लिया, आज भी पहले ओवर में उसको 12 रन्स पड़ गए, बट इट टेक्स अ हार्ट. So I think that character is built outside of the ground in his family, with his family, and which he himself, जो उसका पहला इंटरव्यू था with Pakistan cricket team, उसमें उसने कहा था like my wife really backs me up, she is one of like my supporters. Yeah, that's right. एक और चीज मुझे यहाँ पे जो है बतानी है अपने व्यूअर्स को, एंड आई थिंक ये ज्यादा इतनी जो है वो मशहूर चीज नहीं है, लेकिन आमिर जमाल केम थ्रू द अंडर 19 वाला जो बैच होता है पूरा उसके थ्रू आया, राइट? एंड इन 2017 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, साउथ यॉर्कशायर की एक लीग थी जिसने उसको जो है पिक किया था ऑन पोटेंशियल. आई एम नॉट श्योर उसने कितने गेम्स खेले थे उसमें, या खेले थे या नहीं खेले थे, लेकिन ही वॉज आइडेंटिफाइड एट दैट पॉइंट. लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि लोग उसके बारे में आज सुन रहे हैं. लाइक आज जो है आमिर जमाल बिकम्स द प्लेयर दैट ही बिकम्स, बट अगर आप आइडेंटिफिकेशन पाथवे अपना अच्छा नहीं करोगे तो ऐसे लोग ना आपके फिर उससे निकल जाते हैं. वो जो एक नेट होता है आपका पूल ऑफ प्लेयर्स का, आज ये लड़का 150 करा रहा है, राइट? 150 करा रहा है वो. दैट्स नॉट इजी बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. 150 आपकी मतलब फुल टिल्ट, आप अपने ह्यूमन जो पोटेंशियल है उसको एकदम मैक्स आउट कर रहे हो तो आप उस लेवल पे बॉलिंग कराते हो. तो द थिंग, ऐड करो शफकत, ऐड करो. ये जो पॉइंट मैंने बनाया दैट वाज आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड, लाइक आई वुड लव टू ऐड टू इट कि ऑन द ग्राउंड उसके साथ क्या होता रहा है, सो दैट मेरा वो पॉइंट सिर्फ एज अ होल ना लिया जाए. ऑन द ग्राउंड ही इज अ ह्यूज हार्ड वर्कर, ही लुक्स आफ्टर हिज फिटनेस व्हिच इज लाइक, एक तो उसकी लाइक उसका कद काफी टॉल है, और दूसरा जो आपने उसके अंडर 19 डेज की बात की, ही बस्ट ऑन टू सीन इन 2014 when he started playing for Islamabad region. And after Islamabad region, if you remember 2014 में अफगानिस्तान की टीम आई थी इन पाकिस्तान, और आई थिंक राशिद खान भी उसमें खेल रहा था. दे प्लेड एट गद्दाफी, तो ही हैज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान अंडर 19s एज वेल. लेकिन उसके बाद एक गैप आ गया था. उसके बाद लाइक ये जो नया सेटअप था उसमें ही केम वाया द सेकंड 11. आते आते देन मोहम्मद वसीम, लाइक टू हिज गुड लक के मोहम्मद वसीम वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एट नॉर्दर्न, and when he was progressing, Amir Jamal was when he was progressing and doing well in the national T20 Cup, जो recent most था, Mohammad Wasim took this call to play him in. And then the last point that I would make is कि उसकी bowling इतनी अच्छी क्यों हुई है, was that the way he has bowled in Qaid-e-Azam Trophy, the 4-day games or the 3-day games in the second 11 over the period of last 2 years. उसके अंदर अगर आप उसका first class career देखें तो he has picked up around 59 wickets in 22 first class games and bowled around 3000 balls. और इस सीजन भी उसकी काफी सारी विकेट्स हैं. आई एम नॉट श्योर कि वो टॉप 5 या 6 लीडिंग विकेट टेकर्स में भी आता है, बट आई वाज सीइंग उसका ये जो कैरेक्टर बिल्ड हुआ ना 4 ओवर्स का, टू रन इन, हिट द डेक हार्ड एंड टू लाइक टेक द बैट्समैन बाय फायर, लाइक उस तरह से, दैट हैज बीन बिल्ट बाय बॉलिंग ऑल दोस लॉन्ग स्पेल्स इन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी. एंड वी कैन सी कि आज उसका कैरेक्टर कितना एक सॉलिड कैरेक्टर था. पहले ओवर में 12 रन्स खाए, एंड देन कुडोस टू बाबर आजम एज वेल. उसको उसने उस शोएब मकसूद और हेल्स के सामने एक्सपोज नहीं किया. उसको फिर बाबर आजम 15 ओवर में ले आया, फिर 17वें ओवर में ले आया, फिर 20वें ओवर में ले आया. राइट. अच्छा, आई एम गोना गो टू जिब्रान भाई नाउ. जिब्रान भाई, वेलकम टू द शो. जो है लाइक आज हमने पेशावर और इस्लामाबाद का मैच देखा है, एंड पेशावर काइंड ऑफ लाइक केम थ्रू. लेट्स टॉक अबाउट सलमान इरशाद अ बिट, राइट? क्योंकि उसके मैं स्टैट्स देख रहा था. ही हैज नॉट प्लेड, ही इज ओनली प्लेड 5. पेशावर ज़ल्मी हैज एसेंशियली प्लेड 11 गेम्स इस पीएसएल में, एक एलिमिनेटर मिला के, राइट?
लेकिन सलमान इरशाद हैज प्लेड 5 गेम्स आउट ऑफ दैट, तो विच मींस के मोर देन 50% ऑफ द गेम उसने मिस किए हैं, राइट। आज उसकी अगर फिगर्स हम देखें तो 4 ओवर में से 18 रन दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं, उसका इकोनॉमी 4.5 का और उसके डॉट परसेंटेज 54% है। सो लाइक इस वाज पेशावर जर्नी मिसिंग अ ट्रिक, क्योंकि उनको क्वालिफिकेशन में थोड़ा मसला हुआ था, राइट। वो एकदम एंड में आ गई थी एक बात कि यार अब जीतना है सारे गेम, राइट। तो व्हाई वर्ल्ड पेशावर मैनेजमेंट लाइक शोइंग सम कॉन्फिडेंस ऑन सलमान इरशाद, क्योंकि बेसिकली ही वाज द लिंचपिन जिसने वो स्टार्ट किया था, वो जो कोलैप्स है उसका, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद का, वो सलमान इरशाद ने स्टार्ट किया था। सो अ वर्ड ऑन हिम, एंड वाज पेशावर मिसिंग अ ट्रिक बाय नॉट इनकॉर्पोरेटिंग हिम। Zimbabwe, we can't hear you. Acha, Hassan bhai, you can take this Can until you hear me? we've had. Yeah. We can hear you. Go ahead. परफेक्ट ओके सो सलमान शाह की जो बात कर रहे हैं आपने कहा ना कि डिड दे मिस अ ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग, आई थिंक नो, क्योंकि बीच के जो मैचेस थे पिचेस वर रियली डिफरेंट, स्पेशली दी रावलपिंडी लेग वो डिफरेंट थी, वहाँ पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी। दे वेंट दे ट्राइड अब्दुल उस्मान कादिर एंड ऑल, जो भी है उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन को उन्होंने कई प्लेयर्स को इस तरह से बिठाया। आई थिंक आज बड़ा उनका अच्छा फैसला था टू गो विद टोटल पेस अटैक, सिवाय मुजीब के जो है वो कोई आपके पास स्पिनर नहीं था, तो उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया। उसके हिसाब से सलमान की आज प्रॉपर जगह बनती थी। आई थिंक बल्कि मैं उल्टी बात कहूँगी, क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने आज इंपॉर्टेंट मैच में विकेट देकर जो है सलमान शाह को खिलाया था। सो जिस किस्म की अभी आपने शुरू में कहा कि उनको रिवर्स आखिर में मिल रही थी, आमिर को भी सलमान को भी, सो आई थिंक डिड नॉट मिस एनी ट्रिक। बल्कि आप जो कह रहे हैं कोलैप्स स्टार्ट किया आखिर के जो दो बैट्समैन थे जो कि मैच चेंज कर सकते थे, और मैच आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मैच बहुत करीब आ गया था। मुंड्रो और आजम के लिए इस इक्वेशन को मैच करना कोई मुश्किल काम नहीं था। थोड़ा सा जो मुझे लगता है वेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड वेंट रॉन्ग, शायद बैटिंग ऑर्डर दे कुडंट मैनेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। शादाब को नंबर 7 पे अचानक से आ जाना, मुंड्रो को एकदम से नीचे कर देना, आई थिंक दिस वाज द पॉइंट वेयर दे लॉस्ट, वरना वो तकरीबन चेस कर चुके थे। ओवरऑल अब आप अगर इस्लामाबाद की बैटिंग देखें, जिस तरह से दोनों लोगों ने स्टार्ट किया था, वो शोएब ने और हेल्स ने वो बहुत करीब आ गए थे। उस कोलैप्स को बाद में जब फिनिश किया है वो सलमान इरशाद ने किया है। ऑब्वियसली जो आपने सही कहा कि आमिर जमाल ने मेन बंदों की विकेट गिराई है, हेल्स की विकेट गिराई है, उसके बाद शोएब मकसूद की विकेट गिराई है। कोलैप्स की इब्तिदा उसने की थी, लेकिन 4.5 runs per over, obviously it's not a joke, especially bowling in overs and death. So total credit to Zalmi management and also Salman Rashad for playing that. Absolutely. Acha, Hassan, I'm going to come to you and let's talk about Islamabad United for a bit, right? Because ठीक है वो मैच हार गए, but like being a data team, right? I think okay, let's talk about this, right? Let's talk about data a bit. Data जो है वो dictate करता था. If you look at from a linear perspective, right? Data was like 6 दफा teams, there were 6 wins by teams who batted first and no wins by team batting second, right? Linear data represents कि आप जो है इस पे वो करोगे, टारगेट दोगे basically. But what they did was they said कि क्योंकि 3 दफा या 2 दफा पेशावर जल्मी weren't able to defend, so they basically kind of like were trying to money ball a situation जहां पे they were banking on Islamabad, वो Peshawar to choke while chasing, while defending, rather than themselves giving confidence कि भाई हम अब टारगेट लगा के उसको डिफेंड कर सकते हैं. I think they missed a trick there, right? If you can expand on it. मेरा ख्याल है they probably gave more weightage to the players' data than the ground's data as well. Then the ground data, yeah. And the ground data was very straightforward. No team wins while chasing a Gaddafi. मतलब नो ब्रेनर था, और मुझे ये लगता है जो एक चीज थी वो ये है that was probably playing on their mind was कि जो सबसे सीनियर और प्रीमियर बॉलर है ना जल्मी का, he was not having a good tournament which was वहाब रियाज. तो पीछे बचते कौन, यही सलमान इरशाद और एंड आमिर जमाल, एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू डू व्हाट दे डिड, बिकॉज़ अभी तक नहीं किया था.
तो थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स हो गया उनके लिए। एक चीज मैं ये सोच रहा था कि दे लेफ्ट आसिफ अली आउट, राइट? एंड the kind of bowling these guys bowled at the end, मेरा ये ख्याल है आसिफ अली would have probably loved that, especially जो आमिर जमाल की बॉलिंग थी ना, वो थी जो आसिफ अली चाहता है कि उसको वो वाली बॉलिंग हो। That is a genuine data malfunction, as said by the PG admin. That is genuine data malfunction. हाँ, because आप खिलाओ ना उसको। सॉरी, प्रॉब्ली वो यही हुआ होगा कि उनके दिमाग में होगा कि डेथ ओवर बॉलिंग कराएगा वहाब रियाज with his cutters maybe, but Wahab Riaz was not having a good match and they went the other way around, and Asif not playing also allowed Amir Jamal to do what he did. मतलब वो without fair Yorkers के लिए जा रहा था। अगर वहाँ पे आसिफ होता और थोड़ा सा 19-20 भी होता ना, तो आसिफ would have gone straight down the ground like he's done in the past. आसिफ को मसला कब होता है? आसिफ को तब मसला होता है जब उसकी आई लाइन पे आए बॉल, या मतलब थोड़ा सा उसको बैलेंस उसका खराब हो, which is probably outside off या शोल्डर लेंथ पे। सो आई थिंक maybe there was a bit too much over reliance on data, maybe without context। अक्सर जब इतने ज्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं ना डेटा के, so you need to put weightages on certain things, maybe that's where they went wrong। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, राइट? स्मॉल मार्जिन्स, वेरी स्मॉल मार्जिन्स, राइट? आखिरी, आई मीन एंड में वो लोग जो हैं 12 रन से हार गए, बट लाइक वो सिचुएशन इसलिए आई बेस्ड ऑन ओवर बाय ओवर, अगर हम उसको देखें तो इन द लास्ट 5, राइट, Peshawar did 35 runs in the last 5 and lost 4 wickets. Islamabad did 39 and lost 4 wickets, but they lost by 12 runs, right? वो 12 रन पता है किधर फंसे थे? वो 12 रन इसलिए फंसे थे क्योंकि at the 8th over mark, right? Sorry, at the 7th over mark, उस वक्त क्या कहते हैं, Zalmi were 86 and United were 71, right? Zalmi ने अगले 2 ओवर में कोई मारे हैं 96 20 रन, और उसने मारे पेशावर ने 12 रन, और वो जो 8 रन थे ना, वो और वो ओवर पता है किसके थे? देवर जिमी नीशम ने एक कराया था और एक कराया था सलमान इरशाद ने, दोनों ने ऐसी कोई 5-6 रन इस तरह दिए थे। और वो जो एक जिमी नीशम वाला ओवर बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त था, उसको तक मार पड़नी थी। एग्जैक्टली, वो ओवर जो था ना, वो आपको वो मैच विनिंग ओवर था बेसिकली, क्योंकि इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ अगर आप टोटल देखो तो वो ओवर बेसिकली मेड द डिफरेंस। अगर उस ओवर में 12-13 पड़ जाते ना, आखिर में इक्वेशन कम हो जाती, जमाल के पास कम रन होते डिफेंड करने को, और इवन तो मतलब आप अगर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो तो वो अभी भी 6 रन से जीत रहे होते, लेकिन एक एलिमेंट आ जाता कि यार मेरे पास मार्जिन कम है, क्योंकि जब आपका मार्जिन कम होता है एक्सिक्यूशन ऑफ स्किल्स में मसला आता है। तो ये इतने छोटे छोटे मार्जिन थे कि इफ यू लुक एट द गेम, देन यू रियलाइज इन हाइंडसाइट कि यार ये पॉइंट था जहां पे जो है मैसअप किया था। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इस्लामाबाद का मिडिल ऑर्डर, एंड आई वांट यू बॉयज टू एक्सपैंड ऑन इट, राइट? इस्लामाबाद का मिडिल ऑर्डर हैज नॉट फायर्ड द वे दैट इट शुड हैव फायर्ड, राइट? शुरू के गेम्स में उनके आजम ने निकाल के दिए थे, फिर उसके बाद पूरा टूर्नामेंट वो जो है फंस रहे थे, उनका मिडिल ऑर्डर फंस रहा था। वाज इट कि उन्होंने ड्राफ्ट में कुछ इस तरह की मिस्टेक की है? क्योंकि ठीक है, डेटा टीम है, डेटा ड्रिवन है, व्हाटएवर इट इज, राइट? नॉट सेइंग डेटा गलत हो सकता है, बट डू यू थिंक इस्लामाबाद की इंटरप्रिटेशन में कोई मसला था, कंसिडरिंग कि उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा हॉलो था और फहीम को गेम बचाने पड़े एंड में, और जो है फिर उसके बाद आज वही हुआ जो हमें देखा? तो लाइक शफकत, इफ यू कैन एक्सपैंड ऑन इट वेरी क्विकली। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज भी अगर फहीम थोड़ा अनफॉर्चुनेट वे में रन आउट हो गया, तो लाइक इन केस के अगर वो आउट ना होता, who knows कि we might not have been talking about Islamabad's middle order। यही मिडिल ऑर्डर था at the start of the innings, at start of the tournament, जब we were saying कि this team is going to be like fire। They are like आजम ने जब कोयटा ग्लैडिएटर्स को कराची में मारा था, तो तब ऐसे लग रहा था कि लाइक टीम्स किस किस को आउट करेंगी, मनरो को आउट करेंगी, शदाब को आउट करेंगी, आजम को आउट करेंगी। टुडे वाज लाइक
it was one of those off days. This is something about T20 cricket. Like आप उस दिन कुछ थोड़ा बहुत आपका गलत हो जाए तो all your past records, all your strengths, all your strong zones, जैसे वो 2014 के एशिया कप में strong zone और weak zone आ रहा होता था, all your strong zones वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. एंड आज की टी आई वुड से कि जो नॉकआउट्स होते हैं और इस तरह की हाई प्रेशर गेम्स होती हैं वो थोड़ी पेक्यूलियर हो जाती है इन अ वे कि जो टीम्स के अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं वो नॉर्मल गेम से ज्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं एंड और उनको भी इस चीज का सही से अंदाजा नहीं होता बट दैट एफर्ट इज कमिंग आउट बिकॉज द स्टेक्स आर हाई एंड व्हेन द स्टेक्स आर हाई ना देखो जब ड्राफ्ट में लोग बैठते हैं ये शुरू टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं तो लोग टीम्स बना रहे होते हैं और स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं स्पेशली थिंक टैंक्स भी जो कुछ भी कर रहे होते हैं दैट इज कि हम टूर्नामेंट इस तरह शुरू करेंगे इस तरह जाएंगे नॉट मेनी पीपल डायरेक्टली पॉन्डर अपॉन कि भाई जिस दिन नॉकआउट होगा उस दिन क्या होगा एग्जैक्टली इस चीज को कोई भी नहीं करता I'd like to put in one thing यहाँ पे very quickly. एक और चीज फाइन मार्जिन्स की भी हम बात करें और डेटा की भी बात करें. I think एक चीज जो सेल्फ इन्फ्लिक्ट की है ना यूनाइटेड ने, Sohail Masood, while he's a good player, I do like him. I rate him high. He's had good white ball tournaments in the past. उसके आने से ना यूनाइटेड कंफ्यूज हो गया विद कॉलिन मनरो. एंड यू नो ये एक इशू हुआ है कि कॉलिन मनरो को उनको समझ नहीं आ रही कि किस नंबर पे भेजें. दे सेंट हिम टू लेट. उसका जो अच्छा पोटेंशियल है वो अब दी ऑर्डर है. और अभी जो विकास ने भी बात की ना कि मैच ये शुरू के 10 ओवर्स में हारे हैं या वर्सेस द लास्ट 10. एंड बाबर क्रेडिट टू हिम इन द पावर प्ले ही वाज गोइंग एट ओवर अराउंड 200 का स्ट्राइक रेट. बाद में थोड़ा सा स्लो हुआ जब फील्ड टैली. And then Colin Munro not coming up the order, that also did hurt him, hurt United. क्योंकि फिर वो बाद में इतना लेट आया और फिर उसके बाद जल्दी आउट हो गया. न्यू बॉल के साथ with the field up, he would have been more ruthless. So हमारा against the run. यार मैं कॉलिन मनरो की बस एक बात करूंगा for our audience and panelists. He was born in South Africa, by the way. तो yeah, continue. Also he played for Karachi Kings, so. वो तो You know where it's coming from. continue. जो आपका क्वेश्चन है ना उसमें कि लाइक अगर उनसे ड्राफ्ट में कुछ गलत हो गया ये लाइक इसमें और अपनी तरफ से वो अपने बैटिंग रिसोर्सेज पूरे लेके आए थे. इफ यू सी बस उनसे मसला ये हुआ है कि उन बैटिंग रिसोर्सेज को सही तरह से डिप्लॉय नहीं किया गया शायद आज. एंड टुडे वाज आल्सो वन ऑफ दोस डेज जिसमें वो द बैटिंग रिसोर्सेज themselves haven't come good. आई वंडर कि यही बैटिंग रिसोर्सेज अगर एंडी फ्लावर, अब्दुल रहमान और उन लोगों के हाथ में होते, that's just like speculation. I was just wondering. Right. तो मे बी उन्होंने कुछ इनका यूज करवा लेता. देखो शोएब मकसूद की वाली वाकई कंफ्यूजन है कि अगर शोएब मकसूद अपना आज दूसरा मैच खेल रहा था शायद अगर उसका दूसरा मैच खिलाना है तो वन ऑफ द गाइज कॉलिन मनरो जिसने अब तक शायद 2 या 3 सिंगल डिजिट स्कोर हैं बाकी सारे डबल डिजिट स्कोर हैं 3-4 50 प्लस स्कोर्स हैं एंड दैट टू एट अ स्ट्राइक रेट अराउंड 145-140. तो इस्लामाबाद मिस्ड आउट अ ट्रिक टुडे. 2 ट्रिक्स लाइक एक तो चलो ये था कि हमने चेस नहीं करना, सॉरी हमने चेस करना है, हमने टारगेट पुट अप नहीं करना. चलो आप भाई चेस कर रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि ये एक एनोमली होगी अगर हम आज मैच जीतते हैं बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सक्सेसफुल चेस. तो दे शुड हैव मेड श्योर कि जहां पे हेल्स मकसूद ने गेंदें खेली थी जितनी भी एटलीस्ट 1/3 बॉल्स उसकी मनरो भी खेलता. लाइक मनरो ज्यादा बॉल्स एक ये गलती की और दूसरी शादाब भी बहुत लेट आया है यार. वो फहीम के बाद आया. Like last season he was playing one down and he was doing really well. 90 मारा था. ओवरऑल मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें कि जो वकास ने बात की ना कि क्या डेटा से या एट सम पॉइंट ड्राफ्ट में कोई मिस्टेक हुई, मैनेजमेंट से कोई मिस्टेक हुई, आई डोंट थिंक सो. लेकिन एक पॉइंट मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूँगा, दैट इज टू मच रिलायंस ऑन आजम खान एट दिस स्टेज. बिल्कुल राइट. इस वक्त जो है वो अपने करियर के बिल्कुल शुरू पे है. इतना ज्यादा उस पर रिलायंस किया गया कि आसिफ अली को कई मैचेस में ड्रॉप किया गया. ठीक है, आसिफ अली का मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, लेकिन एक चीज मैं मानता हूँ, मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आसिफ अली का कोई ऑल्टरनेट नहीं है. इनफैक्ट नेशनल टीम के पास भी नहीं है. ठीक है, तो आसिफ अली एक किस्म की मजबूरी बन जाता है टीम की. इस्लामाबाद के जितने बैट्समैन हैं पिछले टूर्नामेंट्स में भी जो ऊपर इतने कॉन्फिडेंस से बैटिंग करते हैं, उसकी एक वजह ये भी होती है कि नीचे समहाउ एक एक्स फैक्टर बैट्समैन रेडी होता है जो कि उनको 10 पे 30, 10 पे 22, 10 पे 20 चेस करके दे सकता है.
वो बैट्समैन इनके पास मिसिंग था। दूसरी चीज़ जो हमने लास्ट टाइम भी एक मैच में डिस्कस की थी कि इस्लामाबाद के पास एक बड़ी पावर वो है जब आजम खान और आसिफ अली एक साथ क्रीज पर आ जाते हैं, एक स्पिन को अच्छा खेलते हैं, एक पेस को अच्छा खेलते हैं। दिस इज हाउ दे कंफ्यूज द बॉलिंग लाइनअप्स। आसिफ अली को जब आप अपनी लाइनअप से रिमूव कर देते हैं तो आप क्या कहेंगे कि आप यू Combo फॉल खराब हो गया। दैट बेनिफिट, सही है, आप वल्नरेबल हो जाते हैं अगर आप उसको ड्रॉप करते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक और चीज़ कि इतना ज़्यादा उस पर रिलायंस किया गया है, विच इज़ वेरी गुड, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि आपने ऑल्टरनेट फिनिशर्स अपने साथ में रेडी नहीं किए, नहीं पिक किए। टू मच रिलायंस ऑन शादाब एज अ बैट्समैन और एंड टू मच रिलायंस ऑन आजम खान एज अ फिनिशर। आपके पास पिछले साल जो है वो दानिश अजीज था, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी पिक थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, जो कि वहां रह के बहुत अच्छा ग्रो कर सकता था एंड विद दीज गाइस वो बहुत अच्छा फ्लरिश कर सकता था, क्योंकि वो नीचे के नंबर्स पे खेलने वाला एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो कि हिट भी कर सकता है, एंकर कर सकता है। उसको वहां से रिलीज किया गया, पेशावर ने भी पूरा टूर्नामेंट बिठा के रखा, उसकी स्किल से फायदा नहीं उठाया। सो आई थिंक दे मिस द अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर जहाँ पे वो दानिश अजीज को एज अ बैट्समैन एज अ फिनिशर भी साथ में डेवलप कर सकते थे। तो ये दो चीज़ें। और दूसरी चीज़ आखिरी बात तो खत्म करूंगा, जो हसान ने भी कही है कि और मैंने भी पिछले पॉइंट में ही कही थी कि दी डिसऑर्डर विद द बैटिंग ऑर्डर, वो इनको जो है वो थोड़ा सा भारी पड़ा। बिल्कुल हसान ने एक सही पॉइंट डेवलप किया है कि वो कंफ्यूज हो गए कि मनरो कहाँ बैट कर रहा है। हिज बेस्ट पॉइंट जहाँ पे वो स्कोर करता हुआ आ रहा है एक दूसरे नंबर पे, मतलब दूसरा मैच खेलने वाले बैट्समैन के लिए आपने उसको नीचे भेज दिया, फिर शादाब सातवें पे आया तो आपका पूरा बेनिफिट किल हो गया। शादाब को ऊपर खिलाने का एक बेनिफिट होता है कि नीचे आपके पास बैट्समैन रेडी होते हैं। शादाब अगर उसको आया तो मे बी शायद वो मैच थोड़ा और आगे तक बढ़ जाता और मैच की सूरत डिफरेंट होती। फिर सबसे बड़ी बैड लक आई थिंक जो हसान ने भी शफकत ने भी शुरू करी थी कि फहीम अशरफ को जो पॉइंट था रन आउट होने वाला, दैट आल्सो बिकेम अ टर्निंग। I think I एक think और चीज I think Islamabad. on the over reliance of Azam Khan, post match मैं सुन रहा था इंटरव्यू सलमान इरशाद का ना, ज़ैनब अब्बास was taking it, तो सलमान इरशाद ने भी ये कहा कि we knew we just had to get Azam Khan out, और जैसे ही आजम खान आउट हुआ तो मैच हमारा है। एंड ये एक किस्म की ना, मतलब प्लेयर्स के सर्कल में भी एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि यार आजम खान को अगर आउट कर लोगे तो मैच फिनिश नहीं होगा, तो वो एक ओवर रिलायंस अब नजर आना शुरू हो गई है। सो एंड विद आसिफ नॉट बीइंग देयर, मैचअप्स इनके खराब होते हैं। सो आई थिंक मल्टीपल डेटा पॉइंट्स I think logic dictates कि Islamabad. I mean, they won't agree to this, but I think कि given the sample size of the chases that they have watched in this season, बीच में एक consolidator उन्हें चाहिए. They need that. I mean, failure has been enough. There have been enough failures now to go that route, right? सोहेब मकसूद कैन प्ले दैट रोल। मसला ये है कि उसकी डॉट बॉल बहुत है, परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हाँ, वो नहीं यार, कंसोलिडेटर मींस के सिंगल निकाले वो। हाँ। वैसे ये इतनी ज्यादा डेटा बेस्ड एरर्स नजर आ रहे हैं कि मतलब डेटा बेस्ड रॉन्ग कॉल्स टेकन एट द बिजनेस एंड इन द टूर्नामेंट। ये किसी प्रोटेस्ट बेसिस पे रेहान भाई से पूछना पड़ेगा कि यार मैं कुछ अभी यहाँ पे नहीं बोलूंगा, लेकिन करते हैं स्पेस, करते हैं रेहान से, बोलते हैं आना आओ बताओ थोड़ा क्या हुआ। वैसे सरप्राइजिंग, watching this, we don't mean that in a bad way. We mean that in a constructive way. yeah, maybe you can take a snippet out of this and post it on his Yeah, चलो that would be a very good idea to propagate our ideas and queries. मगर यार एक चीज है जो हम बोल रहे हैं, यूनाइटेड when they were bowling ना, तो out of course Wasim Junior bowled fairly well as well for them. I think he was their standout bowler. यार उसका I don't know what Hassan Ali was bowling. मुझे Hassan Ali का नहीं समझ में आ रहा था. Like he bowled some very bad balls. बहुत बुरी. हसन अली का ऐसी होता है, हॉट एंड कोल्ड होता है वो कभी। हसन अली अब उस एग्जैक्टली या अच्छा, वैसे उसका वसीम जूनियर का मैं देख रहा था कि देयर वाज अ पॉइंट वेयर वसीम 11वां ओवर था, 11वां ओवर खत्म हुआ, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ आया, एंड देन दे हैड अ चैट इन द मिडल एंड देन आई थिंक वसीम केम ओवर। वसीम ने एक ओवर किया, शायद डॉट बॉल्स थी उसमें, सारी बाउंड्री नहीं थी। उसके बाद somebody picked up बाबर आजम्स विकेट, शादाब शायद picked up, and then Wasim again came back and then he picked up one of the wickets, शायद हारिस की विकेट थी, बट नहीं, हारिस को हसन ने आउट किया था, बट उसमें 2 ओवर ऐसे सैंडविच थे विद शादाब एंड हसन वसीम जूनियर के, जिन्होंने बिल्कुल ही जालमी के रन फ्लो का मोमेंटम तोड़ दिया था।
और टीकेसी जो है उनका मेन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उससे यार बैटिंग ही टीकेसी नहीं भी है। तो माइंड यार ब्लोइंग क्या क्या ही नहीं खेल रहा था he वो। was drunk Really like a frustrating drunk ball. man like what do you do there भाई तुम शॉट और मार के आओगे Nisham, जो I tweeted on this. Jimmy Nisham was the guy who was playing the super over of the 2019 World Cup final as a batsman. और उससे आज मतलब इस पूरे PSL में बैटिंग नहीं हुई। और यार जिमी नीशम का तो फिर भी आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, नीशम बुढ़ा हो गया है, राइट, पुर्जे पुर्जे खत्म उसके जो है हो गए हैं, लेकिन ये टीकेसी क्या कर रहा था यार, वो ही वाज 8 बॉलों पे 16 बॉलों पे 8 रन थे उसके, और उसने फिर उसको रन आउट भी करा दिया। हु वाज दैट गाय जिसको रन आउट करवाया था उसने? फहीम। नहीं 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 हाँ भाई वो शायद उमर जी को करवाया था आज यार रन आउट उमर तो जी वैसे नहीं किया मेरा ख्याल है। यार वो काफी वो उसने करवाया था रन आउट आमिर जमाल को रन आउट करवाया था आमिर जमाल को रन आउट करवाया था। यस यस आमिर जमाल कैन हिट अ ब्लोअर टू और उसको यार रन आउट करवा दिया खुद हिट नहीं कर यार रहा यार देखो, हसान भाई सेइंग फहीम काइंड ऑफ शोज के उनके दिल पे कितना ये लॉस अफेक्ट कर दिया है। टीकेसी इज इन पेशावर जल्दी, मैंने बोला किसको आउट करा है फहीम को। मैं रन आउट दिमाग में वही फंसा हुआ था अभी तक, माय बैड। बट एक और चीज यार, सलमान इरशाद के बारे में मैंने पहले शायद इतनी नोटिस नहीं की और आज मैंने नोटिस की है। वेरी सटल चेंज इन पेस, सो नो, वेरी सटल चेंज इन एक्शन दैट कॉजेस हिज चेंज इन पेस। pretty decent change in pace. I don't know if you guys picked that up. वो अंगूठे का पोजीशन शायद चेंज अंगूठे की करता है, पोजीशन चेंज करता है अपनी। हाँ 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 एग्जैक्टली। तो इसके जो बायोमैकेनिक्स है इसमें हो सकता है शफकत could add a little more to it. यार उसको लाइक एज सच मैंने उसको like, इतना क्लोजली फॉलो नहीं किया बिकॉज दिस इज बीइंग सो एंड सो शुरू में राइट इस टूर्नामेंट के भी शुरू में but he has been that underrated dark horse in the Zalmi lineup and in their bowling lineup. Like he just comes in, bowls his overs and goes away. उससे पहले वो इस तरह से limelight में नहीं आया जैसे आज the game was on the line, whole season was on the line, and guy comes in, bowls that brilliant Yorker to I think Azam Khan na, and like takes those wickets. शायद Hales और Azam को out किया उसने. Like that was like ये उसने लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेला है अब तक भी। आई थिंक उसके करियर में अब तक दिस वाज वन ऑफ दोस परफॉर्मेंसेस। हालांकि आया वो भी हारिस रऊफ के साथ ही था, उसने भी कोहली के साथ नेट किया था एससीजी के बाहर, लेकिन हारिस रऊफ जो था वो आगे निकल गया एंड देन इसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली एंड लाइक ही इज बीइंग दैट डार्क हॉर्स अराउंड और इन ऑल द बॉलिंग लाइनअप्स जहां पे भी जाता है। अभी बीपीएल भी खेल के आया बट टुनाइट वाज द पॉइंट व्हेन ही स्टूड अप एंड पुट हिज आर्म अप के लाइक I am here. I'm going to change the game for you, and we can surely attribute that to his like brain, the way he was changing those balls. जिस तरह उसने एक वो he bowled that slower bouncer जिस पे शायद बनरो आउट हुआ था। तो I think he's got that much control over his change of pace variations, and he knows when to use them and how to use them. यार उसकी 2 विकेट्स देखो, लाइक इट्स अ कंट्रास्ट, एक स्टीयरिंग यॉर्कर और एक स्लो बाउंसर। लाइक ही न्यू व्हेन टू प्लग ऑल दोस थिंग्स एट द टाइम अगेंस्ट दोस बैटर्स लाइक who go berserk at will, Azam and Monroe. So like he seems to have come of age. Like यार इरशाद भी नॉर्दर्न के लिए खेलता है आई बिलीव, एंड आई थिंक इसको उसने लाहौर कलंदर्स के पीडीपी जो उन्होंने आजाद कश्मीर के पीडीपी करवाए थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां से उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था एज अ टैलेंट और फिर लेकर आए थे। और न्यूज चैनल इसको लिख रहे थे कि वी फाउंड आवर ओन मलिंगा। आई थिंक उसका जो एक दैट वाज हिज लाइक कॉलिंग कार्ड, राइट? there's a lot of hype around him. Yeah, but now यार इट्स एक्चुअली वेरी हार्टनिंग टू सी कि कोई प्लेयर है ना वो हाइप के साथ जब आता है कि यार हमने टैलेंट आइडेंटिफाई किया, राइट? द मोस्ट हार्टनिंग थिंग अबाउट आइडेंटिफाइंग अ टैलेंट इज नॉट कि आपने टैलेंट आइडेंटिफाई किया, इट्स कि उसको जब आपने सिस्टम में डाला ना तो वो एक इम्प्रूव प्रोडक्ट बन के निकला। दैट इज व्हाट यू बेसिकली वांट फ्रॉम अ वेल ऑयल्ड मशीन ऑफ अ सिस्टम दैट यू रन इन क्रिकेट, राइट? क्योंकि पाकिस्तान के जिब्रान भाई,
आई वांट यू टू एक्सपैंड ऑन दिस कि पाकिस्तान का जो सिस्टम हिस्टोरिकली रहा है वो इस तरह का रहा है जहां पे अगर आप किसी बंदे को डालो तो वो बेसिकली मतलब जिस उसके साथ आया होता है खसूसियात के साथ आया होता है वो सब भूल जाता है और कोई नई उसकी कोई निकल पड़ती है चीज। लेकिन इट्स वेरी गुड टू सी कि ये जो बॉयज है 2019-18 में जब इनको इंडक्ट किया सिस्टम में तो वी हैड हारिस सोहेल, वी हैड नाउ सलमान इरशाद, राइट, देन आमिर जमाल भी जो है सिस्टम से निकला है इसी एरा के अंदर एंड नाउ ही इज हु ही इज। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। पिछले 5-6 सालों में सिस्टम अच्छे प्लेयर निकाल रहा है इंक्लूडिंग बैट्समैन लाइक साइम, हारिस एंड ऑल दीज बॉयज। सॉरी, बिफोर जिब्रान आंसर्स एक चीज मैं ऐड करूंगा कि एक बीच में ड्रॉट भी आया था बड़ा लंबा, जिसमें हमारे एक सर्टेन कैप्टन थे वाइट बॉल के जो कहते थे कि कोई टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में। सो एग्जैक्टली आज बड़ा हिस्टोरिक डे है। आज से पूरे 7 साल पहले हमने कोलकाता के ग्राउंड में एडन गार्डन्स में अपनी 2016 की T20 वर्ल्ड कप की अपनी वो कैंपेन स्टार्ट की थी अगेंस्ट बांग्लादेश। आज के ही दिन we have these batters who can bat with 200 strike rate. We have these bowlers who can bowl these modern day T20 rocket balls, slower balls, back of the hand, and you name a few. We have got those spinners, each and everything. It's just been a journey of 7 years. So point सर ये कि सिस्टम बना, कोई स्ट्रक्चर बना डोमेस्टिक पे, जैसा भी बना कुछ ना कुछ उसने टर्न आउट किया। So the more you work on that, the more results it can bring you. क्योंकि टैलेंट is there। वो टैलेंट वाली बात जो थी ना वो डिबंक हो गई है। अच्छा, टैलेंट वाली बात इतनी पुरानी भी नहीं है। लाइक एक साल पहले ही अच्छा टैलेंट वाली बात की मजे की बात टैलेंट वाली बात हुई, उसके एक साल बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। जिब्रान भाई, if you can add to this, like we won it without that captain. We only could have won it without that captain. यार, come on. जिब्रान भाई, Okay, so starting from that talent वाला जो statement है या इज़हार ख्याल है, I think हर बात के पीछे ऑब्वियसली हिस्ट्री होती है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हिस्ट्री हमारी ये रही है कि जिसको हमने एज अ टैलेंट आइडेंटिफाई किया है वो आगे वेस्ट ही हुआ है ड्यू टू आवर ओन सिस्टम। ठीक है ना? हम प्री 2016 की बात जब करते हैं तो उमर अकमल वाज आइडेंटिफाइड एज अ डायमंड लेवल टैलेंट जो होता है। फिर आपका एमा को आपने आइडेंटिफाई किया था। आपके पास बॉलिंग में इतने सारे लोग आए थे जो कि जिनको हम टैलेंटेड कहते थे, लेकिन वो उस तरह से मेन प्रोडक्ट में डेवलप नहीं। सो देयर इज अ हिस्ट्री कि हमारे पास टैलेंट डेवलप। मैं देखा था नासिर जमशेद प्लेड हिज फर्स्ट क्लास एट द एज ऑफ 15 आई थिंक। मतलब yes यार, he was a prodigy man यार। 2008 के एशिया कप में इसको खिलाने आ गए थे भाई। यार, नासिर जमशेद was in the batch with Sarfaraz, if I'm not mistaken, because I remember Anwar Ali bowling करा रहा था and he took a catch and slipped, and he was back in from that batch of players. But the thing is कि नासिर जमशेद को आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट किसने की थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि ठीक है, वो whatever he was, right? नासिर जमशेद को अगर आप देख के बोल रहे हो यार क्या टैलेंट है, राइट? He's only 33 after so much. But you're forgetting he scored 1,000 ODI runs in like 25 ODIs with an average of 50. हाँ, 2012 में 3 सेंचुरीज मार दी थी इंडिया के खिलाफ। एक ढाका में, एक चेन्नई में और फिर एक कोलकाता में। उसने एक एशिया कप में मारी थी, एक उसने एशिया कप में मारी थी और फिर 2 उसने इंडिया जाके के मारी थी। जिब्रान भाई, you were saying यार, सॉरी मैं फिनिश करता हूं, मैं पे बोल के आ गया था, सॉरी। ये नहीं मैं फिनिश करता हूं ताकि नासिर जमशेद पे बात है। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक और चीज जो मैं बात कह रहा था कि उस वक्त हमारे पास ये इश्यूज थे, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ बैकग्राउंड, देयर वाज अ बैकड्रॉप फॉर दैट स्टेटमेंट। लेकिन एक बात ये है कि उसके बाद पोस्ट 2017-18 ऑब्वियसली लड़कों को जब कंपैरेटिव क्रिकेट खेलने का मौका मिला, जब PSL अपनी स्टार्ट होती है, तो लड़कों को दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं। एक तो एक इनको मौका मिलता है कंपैरेटिव क्रिकेट खेलने का, प्रेशर क्रिकेट खेलने का, भरे हुए ग्राउंड में क्रिकेट खेलने का, जिसमें स्टेक्स ज़्यादा हाई होते हैं। एंड सेकेंडली दे ऑल्सो प्लेड अंडर डिफरेंट कोचेस, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अप्रोच में डिफरेंस आए हैं।
सलमान इरशाद आपका डोमेस्टिक खेलता रहा है डेफिनेटली बीच में भी, लेकिन ऑब्वियसली वन कैन नॉट डिनाई कि वो अभी जिन कोचेस के अंडर खेल रहा है तो क्या उसमें उनका कितना रोल है, मोहम्मद अकरम का कितना रोल है या सैमी का, इन सब लोगों का कितना रोल है उसकी फर्दर डेवलपमेंट में एज अ प्लेयर। सो ऑब्वियसली जितने आप कोचेस के साथ खेलते हैं उनके साथ फिर उनका अपना एक ना एक इनपुट और एक ना एक हिस्सा जरूर होता है आपकी तरक्की में। तो एक ये चीज़ आपको बहुत अच्छी मिली कि आपको मल्टीपल कोचेस के जरिए इंटरनेशनल कोचेस के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। जिस तरह आप लोग बात करते हैं कि डेटा ड्रिवन टीम्स होती है, इनमें खेलने का मौका मिलता है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी इंप्रूव होगी। सलमान इरशाद अगर आपके सिस्टम में अगर पड़ा रहता तो वो पड़ा ही रहता। उस्मान खान भी इसी सिस्टम से पड़े पड़े निकल गया क्योंकि उसको ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। जो लोग सिस्टम में पड़े गए उनमें से बहुत कम डेवलप होकर निकले। तो अफरीदी वाज़न्ट रॉन्ग अबाउट दैट। आई थिंक सिस्टम का ज्यादा इशू था कि सिस्टम आपको जो डेवलप नहीं कर पा रहा प्लेयर्स को। अच्छा, उसको कंटेक्चुअलाइज कर लेते हैं, उस स्टेटमेंट को कंटेक्चुअलाइज कर लेते हैं। मैं बीबीसी का मैंने ट्रिब्यून खोला हुआ है, ट्रिब्यून मैंने खोला हुआ है राइट नाउ। आई एम गोना जो है रीड आउट दिस। In an interview with BBC Urdu, Afridi said there is little talent in Pakistan that could excel at the international level. We say there is big talent in Pakistan, but sorry, there is no talent, he said. There is no such level of talent which the cricket world demands right now. When further questioned who is to blame for Pakistan cricket's current state of affairs, the former captain said he can only speak freely after retirement. I am centrally contracted with the Pakistan Cricket Board, so I can't talk openly right now, he said. I might end up getting a notice tomorrow at my home, so I will speak after my retirement. The problem is that Afridi has very clearly said, like without any like leading or trailing, कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, राइट? आफरीदी ने चीज जो कही है कि टैलेंट नहीं है, बट मैं इसलिए नहीं बोल सकता इसके आगे मजीद क्योंकि बोर्ड मुझे फारिग कर देगा। ठीक है, इसका मतलब बोर्ड मुझे फारिग कर देगा। had to do something with the board, right? It had to do something with the board, but the problem is कि he is not saying कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नर्चरिंग एवेन्यूज नहीं है। He is saying पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, which is I think a bad choice of words, which I don't think, yeah, क्योंकि if you say कि हमारे पास वो टैलेंट नर्चरिंग एवेन्यूज नहीं है, that would have been better. But the thing is कि he said कि there is no talent. The problem is कि टैलेंट अगर हो या नहीं हो, किसी भी न्यूजीलैंड में कहीं भी ना टैलेंट नहीं होता है। Basically, if you actually scientifically look at things, there are people who come up and play cricket and who have very good hand-eye coordination, and we basically say, "Oh, talent." The thing is कि आप उस टैलेंट का कुछ नहीं कर सकते अगर आपके पास वो तरीका नहीं हो उस चीज को फिट करने का, राइट? बट या देन अगेन उस आपकी बात में भी वजन है। I think it was a culmination of both things, but the choice of words here I think are wrong. That I can always expect from Afridi. Yeah. यार देखो छोटी सी बात है कि टैलेंट तीन तरह का होता है। वन इज नेचुरल टैलेंट, सेकंड इज नेचुरल बट पॉलिश टैलेंट, एंड थर्ड इज एक्वायर्ड टैलेंट। आई थिंक वी मिस द ट्रिक समवेयर इनसाइड, क्योंकि जो नेचुरल टैलेंट था उसको हम एक्वायर्ड टैलेंट तक लेके शायद नहीं आ सके, उस लेवल तक नहीं लेके आ सके, बट टैलेंट वाज ऑलवेज देयर। ठीक है, हम लोग हमारे पास जो है वो इतनी कम फैसिलिटीज के बावजूद ऐसे ऐसे प्लेयर्स निकल रहे हैं कि सलमान इरशाद, जमान खान वगैरह उन जगहों से निकल रहे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। So talent is always there. Right, guys, we need to do not see players coming from those areas coming into Pakistan's domestic cricket over the years. Absolutely. Yeah, guys, we need to do two में खेलते थी जब जो पिछला सिस्टम था उसमें। हाँ, आजाद कश्मीर की टीम थी और वो अंडर 19 भी खेलती थी। अंडर 19 रीजन है, पूरा रीजन है आजाद कश्मीर। Yes, you're right. छोटे रीजन है, ये वो छोटे रीजन है, देरा मुराद जमाली, हैदराबाद रीजन, Exactly. था। और मजे की बात है कि फैसलाबाद हैदराबाद भी शायद इनके हैदराबाद वाली रीजन है। हाँ, मजे की बात है कि 3-4 साल ये सीन चलता रहा, बल्कि 5-6 साल के फैसलाबाद की टीम रेलीगेट होके इधर आ जाती थी, एक तरह की डिवीजन 2 थी छोटे छोटे रीजन्स के साथ। और फिर फैसलाबाद पता क्या करता था, एहसान आदिल को बुला लेता था, उसको मिसबा को बुला लेता था, और अब तक अजमल तो फारिग हो चुका था, लेकिन फिर वो दोबारा क्वालिफाई कर जाते थे। जब क्वालिफाई में मेन राउंड होता था ना, तब मिसबा वगैरह लोग ये बिजी होते थे, तो फैसलाबाद फिर दोबारा वापस आ जाते थे। दैट यूज्ड टू बी Hafiz also played for Faisalabad region, right? At some point. Faisalabad Wolves at one point, and
फैसलाबाद रीजन के लिए 4-डे क्रिकेट शायद उसमें ना खेली, फैसलाबाद वुल्फ्स के लिए बहुत हाँ वैसे फैसलाबाद में खेला है शुरू में, बिकॉज जब सरगोदा रीजन अबॉलिश हुआ था देन हाँ ना, फैसलाबाद के लिए खेला है वो, फैसलाबाद के लिए खेला है वो, एग्जैक्टली। अच्छा या अच्छा गाइस, वी नीड टू डू लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर जर्नी प्रेडिक्शंस, फिर मैं कमेंट्स और उस पे जाता हूँ, राइट। शफकत वेरी क्विकली, पेशावर जर्नी या लाहौर कलंदर्स? आई जस्ट नीड अ वन वर्ड आंसर। द टीम दैट बैट्स फर्स्ट। यार ये क्या है, बोलो जल्दी। लाहौर कलंदर्स। ओके जिब्रान भाई, वेरी क्विकली, लाहौर कलंदर्स पेशावर जर्नी, हु इज गोइंग? We can't hear you, Jibran bhai. I can't hear you. I can't hear you. नहीं, I can't hear you. You did. शायद आप म्यूट पे हैं. Okay. अच्छा, for me, I'm gonna go with Lahore. Yeah. Okay, Jibran bhai, your prediction. जी आ रही है. In a separate context, always Lahore Qalandars. लेकिन on this pitch, with this bowling lineup, also the batting lineup would go for Peshawar. क्योंकि उनकी बैटिंग भी उतनी स्ट्रॉन्ग है और बॉलिंग भी उतनी स्ट्रॉन्ग नजर रही है on these pitches. So I think Peshawar has a clear benefit. Right. Okay. So these were our predictions. Jibran bhai says Peshawar. I'm saying Lahore. Shafkat is saying Lahore, right? Yeah. Okay. So guys, let's go on to the hashtags. आज हमारे पास hashtag आया हुआ है. अच्छा, due to some technical difficulties, we won't be showing the hashtag on screen. So I apologize for people who actually sent to ask PSL Nama. इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कभी नहीं दिखाएंगे. आज टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हम स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे, तो डू कमेंट. बट द हैशटैग दैट वुड फीचर टुडे इज बाय अब्दुल शकूर. He writes, did Data United forget to use common sense at the end? Hashtag PSL now. Guys, thoughts? Not in the end, but I think throughout the talk. नहीं ना, हाँ मतलब बैटिंग के बीच में तो they lost it a lot of times, so it's not in the end. पूरा बैटिंग ऑर्डर उन्होंने तितर बितर कर दिया. I think यहाँ पे डेटा तो बहुत बाद में आता है. This is a basic common sense. This is basic cricket यार. मतलब you were around 105 for 1 और 106 for 1 after 10 overs. आपका 100 जो था पहला 100 वो 64 बॉल्स में आया, और फिर आपने अगले 9.2 ओवर्स में you have scored around 70 runs, right? तभी जाके वो 12 रन से हारे हैं. एंड दिस इज द सेम टीम जिसके अगेंस्ट आप 13 रन से पिंडी में हार के आ रहे हैं. एंड यू आर अगेन चेजिंग. लाइक आप पिछले मैच में रिमेंबर, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम द थिंक टैंक, आई विल बी थिंकिंग अच्छा ठीक है मैं जल्मी के खिलाफ पिछले मैच में 13 रन से आ रहा हूं, एंड आई विल अगेन बी चेजिंग एट अ वेन्यू that where nobody has won chasing, right? But still like फिर आपने एक बहुत अच्छी चीज की यार, बहुत अच्छी चीज की कि आपने 11 ओवर, पहले 11 ओवर के बाद अपनी बॉलिंग बेहतरीन थी, आपने उनको रोक लिया. जो जहां पे वो 230 कर रहे थे, 220 कर रहे थे, आपने उनको 180-82 पे रोक लिया. उसमें भी आपने अजमतुल्लाह ओमर सही से जो एक दो बाउंड्रीज लगी थी, दैट वो एंड पे आके थोड़ा सा चेंज ये भी हुआ है. तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर अपनी बैटिंग से ही स्टार्ट की, बट अगेन द मिडिल ऑर्डर कोलैप्स्ड. एंड दैट आई वुड से कि जहां पे हेल्स आउट हुआ था, हेल्स ने पिछले मैच में भी ऐसे हुआ था. लाइक हेल्स could have changed the game for them in both the games, but he failed to do so. तो इसमें हमें डेटा की तरफ नहीं जाना चाहिए कि भाई डेटा की वजह से इतना कुछ हो गया. ऑफ कोर्स डेटा विनिंग गेम्स भी होता है, लूजिंग गेम्स में भी होता है, बट दिस वाज बेसिक सेंस के द पीपल आउट देयर हु वर लाइक इनके पास रिस्पांसिबिलिटी थी, उनको फिनिश करके आना चाहिए था. आफ्टर ऑल इट्स जस्ट 12 रन्स. यार आई थिंक पीपल जैसे क्विक पॉइंट की जो बात हो रही है, आठ करो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा. उसके बाद एक और चीज जो टूर्नामेंट के शुरू से ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या कमेंट कर रहे थे, इट वाज ऑन द बॉलिंग लाइनअप शुरू से बहुत फ्रेजाइल था. बहुत मौके पे बैटिंग ने चांसेस बचा लिए. फहीम ने इनिंग्स खेल दी, आजम ने खेल दी, बहुत सारे हारे हुए मैचेस थे जिन्होंने आखिर में जीते. सो वो बॉलिंग पूरी तरह शायद एक्सपोज नहीं हो सकी. आई थिंक ये दिस वाज अ weakest time to getting your bowling exposed, और वो बड़ा गलत टाइम पे. बट आई थिंक बॉलिंग गलत टाइम पे weakest point of this squad. यार आई थिंक यार डेटा का ये भी एक सीन है. लाइक आई एम अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ डेटा. लाइक मैं फुल डिस्क्लेमर, मेरी डे जॉब डेटा से रिलेटेड, तो आई एम लाइक अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ डेटा, राइट? बट द थिंग इज कि डेटा जो है ना, वो आपको हमेशा एक
प्रोजेक्शन देगा और उस प्रोजेक्शन की कोई प्रोबेबिलिटी होगी होने की, राइट? डेटा कहता है ये चीज 7 में से 10 दफा होती है, राइट? बट द थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो जो 3 दफा नहीं होती है ना, यू हैव टू लुक आउट फॉर दैट, क्योंकि 7 दफा तो हो रही है, तो अगर आप जो चीज करोगे वो 7 दफा होती है, आप अगर उस 70% पे हो तो दैट्स ऑल हंकी डोरी, राइट? द प्रॉब्लम अराइजेस कि अगर उस 3 दफा में आप आ गए तो देन व्हाट, फिर आप क्या करोगे? वहां पे फिर आपको ना ऑन द स्पॉट फिर डिसाइड करना होता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपके पास फिर ये नहीं होगा कि ओ यार हमारा डेटा काम नहीं किया क्योंकि लाइक 30% पे हम आ गए उधर, राइट? दैट्स नॉट बेसिकली हाउ क्रिकेट शुड वर्क. आप अगर उस 30% में आ गए हो, आपको दिख रहा है यार मेरा अंदर 30%, अनफॉर्चुनेटली अब क्या करें? नाउ यू हैव टू यूज योर लाइक क्रिकेटिंग जिसे कहते हैं एक्यूमेन, और जिसकी वजह से आई थिंक पीपल लाइक अब्दुल रहमान, पीपल लाइक एंडी फ्लावर आर वेरी गुड, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर वो उस 30% में आ रहे होते हैं ना, फिर दे यूज देयर क्रिकेटिंग नॉलेज टू गेट आउट ऑफ दैट जेल सिचुएशन, और फिर वो टर्न करके कम बैक करते हैं मैच के अंदर. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. डेटा एक और चीज है, डेटा एक निकालना एक अलग चीज है, डेटा को एग्जीक्यूट भी करना होता है. एग्जीक्यूट करना है. अब वो एग्जीक्यूट कितने आपके प्लेयर्स कर सकते हैं, ये पूछने वाली बात है. स्पीच की बात नहीं की. आप एक बॉलर को बोलते हैं कि यार इस बैट्समैन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बाउंसर्स पे ज्यादा आउट होने की, वो एक ओवर में कितने बाउंसर्स कर सकता है, उसको उसकी अपनी स्किल कितनी है, उसको डेटा को एग्जीक्यूट करने की, दैट आल्सो मैटर्स. क्योंकि डेटा कोई जादू नहीं है ऑब्वियसली, वो आपको एक प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है, एक बैकड्रॉप सेट करके देता है, एक पर्सपेक्टिव दे सकता है. यार इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है 2013 की. अभी उसने शफकत ने बात की थी, तो 2013 का जब हमारा 2012 और 13 का जब इंडिया टूर हो रहा था, तो उसमें ओडीआई सीरीज में लाइक हमारे बॉलर्स ने इंडिया को एकदम मतलब फंसा के रखा हुआ था, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स में, राइट? तो जब सेकंड वाले लॉस के बाद धोनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, तो सम रिपोर्टर आस्क्स हिम कि एमएस जो है पाकिस्तानी बॉलर्स शॉर्ट बॉल बहुत अच्छा यूज करते हैं, पर लाइक आपको हमने नहीं देखा शॉर्ट बॉल यूज करने के लिए. तो जो है नहीं सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ. उसने बोला कि उस वक्त ना नया नया लॉ बना था शॉर्ट बॉल का कि 1 से 2 हो गया था, लाइक एक बॉल पहले करा सकते थे, फिर उसके बाद 2 उस सीरीज में इंप्लीमेंट हुआ था पहली दफा. तो बोला आपका क्या ख्याल है कि 2 शॉर्ट बॉल अब आ गई हैं उसमें क्रिकेट के अंदर, तो हाउ इज गोना अफेक्ट? कहता है यार हम इधर एक शॉर्ट बॉल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो इस तरह तो 2 आके लाइक हम कौन सा तीर मार लेंगे? बेसिकली दैट पॉइंट. यार मतलब उसको एग्जीक्यूट भी तो करना होता है, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो क्या अचार डाल लोगे चीजों का? अच्छा गाइस, लेट्स गो टू कमेंट्स, राइट? I think we're having some technical difficulties with जिब्रान भाई का जो है कनेक्शन. तो शफकत कमेंट्स पे चलें? हाँ चले. I think we're having some issue. Oh damn. Okay, let's go to the next जिसे कहते हैं कमेंट. ओके अच्छा यार, अब ऑडियंस को बताते चलें, एज वी ऑलवेज सेड कि हम तहकीक नहीं करी है हमने कि ये लोग कौन है, ऑल्ट अकाउंट्स हैं या असली अकाउंट्स हैं. अगर असली अकाउंट्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर ऑल्ट्स हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड येट. बट विल टेक द कमेंट ऑफ अरफा फिरोज. राइट्स, इज बाबर लिसनिंग टू पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड डोमिनेटिंग द बॉलर्स नाउ? शफकत. यार ऑफ कोर्स आजकल के दौर में लाइक क्वेश्चन इज वेरी वैलिड. वी कैन लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि अरफा वाकई वही है कि नहीं. दिस इज वेरी वैलिड थिंग टू डिस्कस कि बाबर को लाजमी बात है वो बातें पता चलती हैं. और पिंडी वाले मैच में, लास्ट मैच में हमने देखा साइमन डूल वाज सिटिंग देयर एंड टॉकिंग टू हिम. ऑफ कोर्स बाबर को पता होगा कि ऑन एयर कमेंट्स हुए थे एंड देन डूल हैज बीन रिसीविंग दैट दोस अब्यूज फ्रॉम द फैंस ऑनलाइन, राइट? तो श्योरली अच्छा बाबर ऐसा बंदा है जिसको बहुत सारे लोग ये पॉइंट भी करते हैं बाबर कैन प्ले रियली रियली वेल. जैसे उसके 2 फास्टेस्ट पीएसएल 50s इसी पीएसएल सीजन में आई हैं. तो बाबर कैन इंप्रूव, ही हैज गॉट ऑल द कैपेसिटी
उसकी कैपेसिटी एंड बिल्ड हुई, he's got a lot in himself, पर उसको थोड़ा सा लाइक ही हैज टू बी पुश्ड, या कोई ना कोई इस तरह का जब व्हेन पुश कम्स टू शो ना, तब बाबर रिएक्ट्स टू इट, एंड बाबर का अपना एक प्लान होता है कि अच्छा अब मेरे खिलाफ क्रिटिसिज्म हो रहा है या मेरी टीम बाहर जा रही है या कुछ इस तरह का मसला हो रहा है ना, तो आई विल रिप्लाई। लाइक आज ही के दिन कराची में भी उसने इस तरह का रिप्लाई किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, राइट, लाइक अपनी बैटिंग के साथ। तो इट श्योरली सीम्स टू बी कि ये चीजें वो सुनता है, एंड somehow he does not get under the pressure of those comments and that criticism, बल्कि he uses that criticism as a motivating factor to like come out strong। आज भी जब आखिरी बॉल हो गई थी, and to look at his body language and to look at the way he said like just calm down and just थोड़ा बहुत एक underrated सी celebration थी। So it tells कि he's out there telling everybody कि I am here to stay, I can bat well, I've batted with around like 28 ball 50 थी आज, almost 190 के strike rate, 185 190, right, and my team is winning, I'm taking the shots on the field and I'm here to stay। So of course he's listening to that criticism and positively taking it। Right, Jibran bhai, very quickly, if you can add your 2 cents on Babar taking positive criticism and dominating the bowlers। यार आई एम नॉट श्योर अबाउट क्रिटिसिज्म और उसको पॉजिटिवली लेना होगी तो प्लेयर्स ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक बात है कि जो बड़ा प्लेयर होता है ऑब्वियसली उसको आप बहुत टाइम तक रोक नहीं सकते। आज की जो इनिंग थी मैं बड़ा क्लियरली कहूंगा कि ये जो आज की इनिंग थी पिछली 2 तेज इनिंग से और इवन उस सेंचुरी से बहुत बेहतर थी, क्योंकि इट वेंट इन डिफिकल्ट कंडीशंस, इट केम इन डिफिकल्ट कंडीशंस। जो पिछली 2 कंडीशंस थी वो ज्यादा बैट्समैन से भी ज्यादा थी, उसमें कंडीशंस में बाउंड्रीज आसान थी। आज की जो इनिंग थी ये प्रॉपर मैच विनर इनिंग थी, जिसके अंदर बाबर ने पूरी इनिंग को जो है वो अपना बिल्ड किया था। सो बड़े प्लेयर को आप नहीं रोक सकते ऑब्वियसली, उसके अंदर एक स्केल है, नेशनल टीम का कैप्टन है, तो ऑब्वियसली वो अपने बॉलर्स को भी इस तरह से यूज करेगा। एक बैटिंग में भी अगर वो किसी मैच में फेल होता है, अगले मैच में ही ऑलवेज कम बैक। मैंने कल अपना एक बात कही थी कि पेशावर के ऊपर ये था कि इस तरह के वो लास्ट 2 मैचेस इस तरह से हारे हुए थे, दे ऑलवेज बाउंस बैक, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, तो उसमें कोई शक नहीं। राइट यार गाइस, वी हैव टू डू दिस वेरी क्विकली क्योंकि बहुत कमेंट्स हैं। Syed Muzammil Ahmed writes, nothing can stop Peshawar Zalmi from winning this PSL. They just needed their bowling to click at it. It has done so today. Guys, very quickly, 2 cents. I need this covered in 30 seconds. Shafkat, go. I think Peshawar can bowl well and they will be bowling well tomorrow against Lahore, क्योंकि कल का मैच डिसाइड करेगा if they can win or not, but still it comes down to their like जो बैटिंग है, that will have to back up that bowling। जितनी अच्छी आमिर जमाल बॉलिंग कर रहा है, सलमान शाह बॉलिंग कर रहा है, तो आज स्पिनर भी एक ही खिलाया हुआ था उन्होंने, if you see that और मुजीब के ऊपर क्रिटिसिज्म है। मुजीब का मैं देख रहा था कि he hasn't been picking wickets in his last 11 games, पिछले 11 मैचेस में 4 आउट हैं उसके और 8 विकेटलेस गेम्स हैं, बट आज उसने कुछ डॉट बॉल्स की थी, लाइक अंदर से he's been consolidating with his bowling as well। तो आई थिंक उनकी बॉलिंग हैज कम गुड, but the batting will still have to complement it, क्योंकि आज 12 रन रह गए थे पीछे, ठीक है, तो if the batting had scored 200 तब ये वाली बॉलिंग जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आती, ठीक है। ये that's all। Jibran bhai, if you can very quickly add to this। क्विकली बात करूंगा कि फाइनल में जो टीम है वो ऑलरेडी खुद एक कंप्लीट टीम है जो कि बैटर वेट कर रही है। सो आई थिंक इवन इफ पेशावर ज़ल्मी रीच टू फाइनल्स, टक्कर का मुकाबला होगा, दोनों की बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, दोनों की बैटिंग बहुत जबरदस्त है। Okay, moving on to the next comment। Hassan Ijaz writes, amazing captaincy from skipper Babar Azam, mashallah। Yeah, captaincy completely on point थी आज। उसने वहां से 2 ओवर नहीं करवाए, उसने 2 ओवर करवाए, देखा पिटा, नहीं करवाए, उसकी फील्ड प्लेसमेंट, बाबर कैप्टन जस्ट वेरी वेल टुडे, लाइक नो क्वेश्चन। बाबर ऑफ एशिया कप, लाइक एशिया कप के फाइनल में या उसमें श्रीलंका के खिलाफ जो 2 मैचेस थे, उसमें देयर वर अ फ्यू एरर्स जिसको हम सब लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई हसनैन के 2 ओवर्स और करवा देने चाहिए थे, बट टुडे ही वाज सो स्पॉट ऑन विद हिज फील्ड्स एंड विद हिज बॉलिंग चेंजेस, एंड दैट इज वेयर आई से कि जस्ट बी पेशेंट विद बाबर आजम इस साल। ही शोड इज लर्निंग फ्रॉम हिज कैप्टनसी, हिज कैप्टनसी विल इंप्रूव समवट। जिब्रान भाई, वांट टू ऐड या नेक्स्ट कमेंट लूं? आगे चलते हैं, आई थिंक बात कर चुकी कैप्टनसी की भी हमने। ऑलराइट, आदिल निसार राइट्स, why are people bashing Islamabad United use of data? Their use of data totally choked DKC and Jimmy and nearly costed Peshawar Zalmi the match. Otherwise, Peshawar Zalmi
should have scored around 200. Good rebuttal. Guys, you want to take this? Yeah, bowling wise, though, it was very good. They actually stopped them. But बैटिंग वाइज दे हैड टू लाइक काइंड ऑफ थिंक लाइक हाँ टोटली हम डेटा को बैच नहीं कर सकते और डेटा को टोटली ही वो चीज नहीं दे सकते लाइक ये भी एक बड़ा एक अजीब सा डायलेमा बना हुआ है आजकल के जब कुछ गलत होता है फिर भी लोग डेटा की तरफ लाइक जाकर डेटा को ब्लेम कर देते हैं डेटा 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 जब कुछ सही हो रहा होता है फिर भी लाइक इट्स द प्लेयर्स आउट देयर हु हैव टू डू द एग्जीक्यूशन यार माय थिंग इज कि उस डेटा को इसलिए बैच किया जा रहा है क्योंकि लाइक इस्लामाबाद शुडंट बी चेजिंग Islamabad should have been setting a target. That's the reason why I'm saying that data they used it like in a very weird way. अच्छा डेटा जो है ना like I don't know if you guys listen to हैदर अगर की वो जो एक पॉडकास्ट थी राइट और उसमें इसने कहा था कि डेटा अगर आपके पास आता है ना जैसे आपके पास आया और कोई कह रहा है कि यार ये बंदा डेथ में बॉलिंग अच्छी कराता है राइट तो दैट कैन बी सीन डिफरेंटली बाय 3 डिफरेंट एनालिस्ट उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना यूजेज ऑफ डेटा से प्रॉब्लम नहीं है वो हर टीम को करना चाहिए इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा से प्रॉब्लम है और वही मैंने जैसे बात की अगर आप देख रहे हो कि 70% कोई चीज सक्सेस रेट है और 30% किसी चीज का नहीं है तो आप अगर उस 30% में आ रहे हो तो देन यू हैव टू कोर्स करेक्ट एंड यू हैव टू इंश्योर कि आप उस 30% से कैसे बाहर निकलो इस्लामाबाद का आई थिंक इज दैट वंस दे हैव देयर प्लान्स इन मोशन they don't have like a plan B which kind of like थोड़ा सा ऐड करूंगा इस पे वकास दिस माइट बी राइट अप योर एली कॉर्पोरेट सेक्टर में ना कॉर्पोरेट सेक्टर में व्हेन इट कम्स टू डेटा एनालिसिस तो देयर टू लेग्स ऑफ ओवरऑल एनालिसिस एक होता है जो डेटा एनालिस्ट होता है और फिर एक होता है जो बिजनेस के लिए डिसीजन लेता है एग्जैक्टली डेटा एनालिस्ट जो होता है ना उसका कोर जॉब ये होता है कि वो टेक्निकली डेटा हैंडल करना जानता है एग्जैक्टली उस बट डेटा से क्या निकालना है क्या देखना है क्या वेरिएबल्स डालने हैं क्या उसकी इंटरप्रिटेशन होगी किस तरह से उसको इंटरप्रेट करना है किस कॉन्टेक्स्ट में करना है व्हाट इज द राइट मॉडल वो बिजनेस एनालिस्ट का काम है क्योंकि फंक्शनल नॉलेज उसके पास होती है टेक्निकल नॉलेज डेटा एनालिस्ट के पास होती है बट फंक्शनल नॉलेज बिजनेस सिमिलरली क्रिकेट में भी डेटा एनालिस्ट तो बहुत होंगे बट जो डेटा की इंटरप्रिटेशन है कि किस तरह से उसको देखना है वो आई थिंक दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट स्किल बिकॉज टेक्निकल स्किल राइटर्स आपको मिल जाएंगे बट इंटरप्रेट लाइक डेटा इज नथिंग विदाउट इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली सो आई थिंक यही चीज हमें आज के मैच में भी नजर आई कि डेटा तो था मगर उसका कॉन्टेक्स्ट शायद सही नहीं था यार इसकी बहुत अच्छी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ राइट अगर कोई एक कंपनी है राइट वो 100 यूनिट कुछ बेचती है एक साल के अंदर बहुत सिंपल एग्जांपल है 100 यूनिट बेचती है राइट और अगर आप अगले साल वो 101 यूनिट बेचती है तो इस दोनों उसमें प्रॉफिट हुआ है लाइक दोनों उसमें जो है उनको प्रॉफिट होगा लेकिन उनका जो ग्रोथ है वो कम होगी तो आप अगर अगर आप सिर्फ सेल्स को देखो और आप बोलो कि यार इन्होंने इस साल 100 बेचे लेकिन अगले साल 101 बेचे हैं तो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट हाँ इम्प्रूवमेंट है लेकिन उनका ग्रोथ परसेंटेज सिर्फ 1% है राइट अगर आप एक्चुअली डेटा के साथ देखो तो इसी तरह क्रिकेट के अंदर भी जब आप कोई डेटा पॉइंट निकालते हो तो यू हैव टू देन कंटेक्चुअलाइज दैट डेटा पॉइंट गिवन अ सिनेरियो या गिवन सम पास्ट inferred डेटा या करंट कंडीशन जिसमें आप उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हो अगर आप कोई आइसोलेशन में डेटा पॉइंट निकाल के उसको लेके कहते हो कि यार मैं इसको इंप्लीमेंट करने जाऊंगा विदाउट हैविंग एनी कंटेक्चुअलाइज्ड नॉलेज ऑफ डेटा यू गोना फॉल ऑन योर फेस यार एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड अच्छा ये बड़ी जो है वैसी है बात बड़ी टेक्निकल बात है लेट्स मूव ऑन अब वी गोना लूज ऑडियंस वेरी क्विकली अगर हम इस पर बात करते रहेंगे राइट ओके मूविंग ऑन सैयद ओवेश राइट कल का मैच 100% लाहौर जीत रहा है अगर तुम ओके लेट्स मूव ऑन इस्लामाबाद शुड हैव वन आसमा सईद हसन भाई या आई मीन वी स्पोकन अबाउट इट वो स्मॉल मार्जिन्स थे
जिसमें 12 रन्स का डिफरेंस हमें नजर आया कि वो कौन सा पार्ट पोर्शन था, एंड आई वाज नॉट द बिजनेस एंड ऑफ द मैच, इट वाज द फर्स्ट एंड ओनर्स जहां पे इस्लामाबाद और ज़ल्मी का डिफरेंस नजर आया. सो आई थिंक वी स्पोकन अबाउट दिस. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट कमेंट. Yeah, okay. So, thumbs down, morale two rights. Sammy was asking Peshawar Zami players to not celebrate early. Safe to say, Sammy has been closely following Pakistan cricket for the last 2-3 years. I think Sammy has been following Pakistan cricket for many years. Given how he was telling everybody कि भाई relax, अभी कुछ नहीं हुआ है. Yes, सैमी पेशावर ज़ल्मी के साथ भी बहुत टाइम से था. ज़ल्मी also has been in the same business. 2016 से है वो. यार मुझे तो सबसे बेस्ट चीज पता है क्या लग रही थी? मुझे सबसे बेस्ट चीज लग रही थी, इंजमाम was expressionless throughout that. Like, imagine, like, The kids have been there. yeah, like वो 92 से है, उसने इतनी चीजें देखी हैं. I was going to say that when has Inzamam, I mean, I think apart from that Bangladesh century that he hit Multan, उसके अलावा उसने कब कोई इमोशन शो किया है? एक गम होती थी उसके मुंह में जो फर्स्ट ओवर से लेके 50th ओवर तक वही गम रहती थी. एक दफा किए थे. I know what you're talking about. मतलब उसमें भी मतलब आई एम प्रीटी श्योर उसके फेशियल एक्सप्रेशन सेम रहे होंगे. भारत की बात कर रहे हैं. So okay, maybe twice in 30 years. यार एक मैं यहाँ पे ऑडियंस को बताऊं, I think it was 96 or 97. I'm not entirely sure the year, but they were playing against West Indies and Courtney Walsh or Ambrose was bowling. और Ambrose उससे और Inzamam was like at his peak. He was playing very well. तो Ambrose ना उसको follow through ball कराता है, Inzamam मारता है, follow through में पकड़ के throw करता है, right? And it kind of like either misses Inzamam very from closely or hits Inzamam. Or he just walks. They have an exchange. Ambrose walks back, and the mom is like chewing his chewing gum, and he's sizing him up, right? And the next delivery, he sends him like in the stands. और फिर उसके बाद उसने छक्का मारा था. एक और point पे इंजमाम showed emotion after the Multan chase against Bangladesh when he was making that was incredible, yeah. That was the chainsaw came out, yeah. तब तो वो full. I think he was making a comeback. That's why the chainsaw came out. मतलब उसके ऊपर external pressures भी बहुत सारे थे. There was a lot of. Yo. Okay. Arham Hamid writes, Ahmed Bhai saved Peshawar. End of story. Yeah. Correct. Yes. मुजम्मिल राइट, हसन अली से पहले वसीम जूनियर भेजना था. नहीं यार, नहीं, वो सही भेजा था ना, लाइनअप सही भेजी थी. हसन अली आउट ऑफ 160 आपको दे देता है कम बॉलों पे. वसीम जूनियर टेक सम टाइम, उसका नहीं है. ओके, लेट्स सी. Okay. Yarok writes, my question to all of you, no doubt Shadab Khan is best all-rounder, but his batting technique has not been up to the mark. Afridi, who you think is the best all-rounder with bat on ball? I think he means to ask after Shahid Afridi, who's best all-rounder. मतलब वैसे एक बात है, Shadab with his technique, I think he's actually a really good batsman against spin. मैं देख रहा था जो इसने ना 1-2 इनिंग्स खेली थी T20 वर्ल्ड कप में, एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट और एक जो इसने खेली थी आई थिंक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. तो चलो पेस को मारा था, पर जो अफगानिस्तान वाली इनिंग्स थी ना, when he was the man of, I think that was not the World Cup, that was the match जिसमें नसीम ने 2 छक्के मारे थे, वो एशिया कप था, सॉरी. उसमें उसने अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बहुत अच्छी हिटिंग की थी. व्हेन इट वाज अ लो स्कोरिंग थ्रिलर, मतलब 130 पे हम फंस गए थे, एंड ही स्टूड आउट उस मैच में. और राशिद खान, नबी एंड मुजीब के अगेंस्ट ऑन अ टर्निंग विकेट इजीली वो मिड विकेट पे छक्के मारते, क्योंकि वो ही क्राउचेस सो लो अगेंस्ट स्पिन
Yeah, Has to that's look one at the of the ball. very good और characteristics of his batting. हाँ, एक किस्म का वो हाफ स्वीप, हाफ क्राउच लॉफ्टेड शॉट होती है, मिड विकेट की तरफ ही होती है, बट काफी फुल प्रूफ उसकी अप्रोच है अगेंस्ट। और यार उसका उसका बैटिंग का उसकी जो बाउंड्री लाइक एवरेज जो स्ट्राइकिंग है बाउंड्री इन T20 क्रिकेट इज आई गेस दैट इज अराउंड 6-7 बॉल्स के बाद विद बाउंड्री मारता है। So it's got this ability to pick a ball that can be hit outside of the boundary via aerial route or via the ground. So he's very good at picking his balls. तो एक एक बात बोलूं, आफ्टर बाबर आजम शादाब इज योर मोस्ट, जिसे कहते हैं, केपेबल क्रिकेटर राइट नाउ। यार वो साउथ अफ्रीका वाला मैच वो T20s, yes. मतलब For T20, yeah, for T20. he's got 98 wickets, I think. मतलब he's going to be your highest wicket taker all time for Pakistan in T20s very soon. यार the fact is कि like एक जमाना था हमारे यहाँ तीनों ही हम like top 3 हमारे होते थे विकेट टेकर। हाँ, I think Like it was Afridi, Umar Gul, Akhil and Saeed Ajmal. Yeah. Okay, moving on. I think this is the last question of the evening. Usman Ashraf writes, in context, do you think Shoaib Maqsood's innings cost IU? He played well but only finished at a strike rate of around 125. Yeah, I think this was one of the main reasons why IU couldn't do. Right, Hassan bhai touched this early on in our show. Hassan bhai, if you can take this. We can't hear you, bro. Sorry, मैं ये कह रहा था मसला तो था, but if you look at it, उसका apart from Shoaib Maqsood, nobody else was hitting it. वो टीम को 10 over लेके जा रहा था. It's just that Alex Hales was not getting strike, and it was also Shoaib Maqsood. और फिर जब Alex Hill did get strike, तो Shoaib Maqsood considerably slowed down. तो मतलब ये कहना कि it was all because of Shoaib Maqsood थोड़ा सा गलत हो गया. I think it was more strategic errors that we spoke about, batting order के भी और maybe team as well. So yeah, not. I think 4 ओवर तक तो शायद हेल्स ने एक बॉल खेली थी 4 ओवर्स तक। हाँ, मगर उसका तो निकाल लेते हैं ना, अभी आप लोग बात करो, मैं निकालता हूँ इनिंग बाय। So he was, मुझे अगर from memory if I remember, he was like when he touched his 40s ना, तो he was like off 25ish balls or something like that, which isn't bad. वो जब 50 तक पहुंचा तो तब वो थोड़ा स्लो हो गया था. 35 to 40 बॉल रेंज के बीच में उसने 50 की थी, and that is because उसको Alex Hale started picking up really well. वो अच्छा खेल रहा था. आखिर की क्वेश्चन इतनी ज्यादा नहीं थी। हाँ, प्रेशर नहीं था. प्रेशर सिर्फ तब हुआ जब ये दोनों आउट हुए, उसके बाद मुनरो जो और बाकी मुनरो की जो इनिंग्स थी, आई थिंक मैं कहूँगा वो जो 5 बॉल की उसने इनिंग खेली है, शायद उसके अंदर ये 9 बॉलों की खेली है, शायद 9 बॉलों की इनिंग्स खेली है, उसने अंदर 5 रन बनाए. वो एक छोटा सा 4 बनाए शुरू हो गया, 4 ना, तो यार लिखना शुरू हो गया साइड में. यार वैसे मजे की बात है कि यार मैं एक यहाँ पे जो है मैं एक बात बस बोलना चाह रहा हूँ मकसूद की. उसकी शुरू की 4 बॉलों में 2 डॉट्स थे, फिर जो है नेक्स्ट 6 बॉलों में 4 डॉट्स थे, फिर नेक्स्ट 6 बॉलों में 3 डॉट्स थे. तो वो क्या करता था, डॉट्स खेलता था and then he used to do like a release shot. Yes, that was what he was doing basically. Shafkat, you were saying something? हाँ, मैं ये कह रहा था कि शादाब आज ही फिनिश लाइक वो नॉट आउट था 12 बॉल्स पे 26 रन, और मिडिल ऑर्डर में आजम, मनरो और फहीम उनके मिला के 11 रन थे फ्रॉम 14 बॉल्स. तो वो जो 14 बॉल्स थी ना, उसमें अगर शादाब खान कहीं ना कहीं पे ऊपर आया होता ना, दैट वुड हैव काइंड ऑफ मेड द डिफरेंस. वो जो 12 रन, मतलब आयु, एक बात बताऊं, बाहर से ना आई वुड से कि ठीक है हमारा सीजन बुरा गया है ऑल दैट, कहीं ना कहीं पे आयु थिंक टैंक जो है ना थोड़ा सा बैठ के दिस लॉस वुड स्टिक टू देम यार. मतलब तो रेट्रोस्पेक्ट में वो नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने क्या-क्या गलतियां की. छोटे-छोटे मार्जिन थे, छोटे-छोटे मार्जिन. इट वाज लाइक कि गेम हमारे हाथ में थी, हम सारा टाइम अपने हाथ में लेकर फिर रहे थे. लाइक मैं देख रहा था from one strategic timeout to another strategic timeout, there are 20 overs in between, right?
उन 20 के 20 ओवर्स में the game was in the hands of Islamabad United. And in T20 cricket, to be in the game, to be in the driving seat in a game for those 20 overs, that means that half of the batting and half of the bowling, you should be on the winning side, but then you lose by 12 runs. This is a very peculiar loss kind of from Islamabad United, and they'll surely be thinking about it कि ifs and buts लगा के हम जीत सकते थे, but kudos to Zalmi's bowling lineup. वैसे यार मेरा यार मेरा एक चीज इस्लामाबाद एक चीज का सोशल सर्कल है ना यहाँ पे, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस हैं, दे आर जेन्युइनली हार्ट ब्रोकन. Yeah. मतलब यार द फैक्ट दैट हसान भाई रात के 12 बजे बता रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फैंस जाग रहे हैं, तो दैट शोज के कितना जो है गम में है बेचारे. यार ये और वैसे ना दो एक बजे क्लीशे बन चुका है इस्लामाबाद के बारे में. इस पे एक अलग show होना चाहिए on why this is a false narrative. अच्छा यार, मोहम्मद वसीम just tweeted something. Wasim just tweeted something. I don't know if you guys seen that. Which Muhammad And Wasim, he's junior one or the bowl Wasim one? it's Mohammad Wasim 77. I don't know which one is this. That's bowl bowl Wasim. Wasim. That's bowl Wasim. Okay, that guy tweeted like 16 player list and then wrote etc, and then wrote useless and made like a laptop emoji and then a laughing emoji. Oh wow! What's happening here? Wait a minute. The knives are out. Like Abrar, Saud, Mohammad Wasim, Aga Salman, Abdullah Shafiq, Azam, Saim, Haris, Hasibullah, Amir Jamal, Ehsanullah, Abbas Afridi, Zaman Khan, Tayyib Abbas, Naseem Shah, Shahnawaz Dani. What's going on? What's this? और इसमें Backstory, क्या boys. आप क्या लिखा है उसमें? Useless laptop emoji, laughing emoji. यार ये मतलब I don't think we should pay too much heed to it. Unfortunately, मतलब I respected Mohammad Wasim with his takes, especially जब वो ball Wasim उसका चल रहा था. But what is this? I need to understand. Like I don't understand this tweet. मैं बताता हूँ ना, my interpretation is, and then Shafqat and Jibran can add on it, कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस बात पे when he was chief selector ना, तो इस बात पे criticism होता था कि ये purely laptop की base पे. हाँ, और वहाब रियाज ने भी कहा था ना, वहाब रियाज ने भी कहा था, वहाब ने भी कहा था, इमाद ने भी कहा था, and कुछ जर्नलिस्ट ने उसको एक टैग भी दे दिया. शफकत को पता होगा वो टैग नेम क्या था, something like laptop selector. हाँ, laptop selector. Some. At least he tried something new, which was not done before, and I respect him for that. And now that he's not chief selector, he's probably taking a dive back at the current administrator. So it is what it is. That's how things go. But like, why is he bringing this up right now? I don't understand this Should have been contextualization. doing this after the press conference, right? हाँ ना, अभी क्या करने की जरूरत है भाई ये? I think वो देखना पड़ेगा कि context क्या था. वो अभी हम live on air तो शायद ना हमें पता चल सके. रात के 12 बजे ट्वीट कर रहा है like a list of players and then like red flag है, ये बहुत ही बड़ा, लेकिन जो है क्या कर सकते हैं. अच्छा guys, मैं जवाब दे रहा था कि मे बी शायद ये वो प्लेयर्स हो जो इसके टाइम में खेले हैं. यार वैसे एक, हाँ ये भी हो सकता है. वैसे एक ना शो करना चाहिए हमें, डिस्कसिंग दिस जनरेशन. This generation of Pakistan players. यस, यार बनता है एक पूरा शो बनता है इस पे वैसे, तो करेंगे किसी दिन. अच्छा ये शो तो अब खैर हमने डिस्कस कर लिया सब कुछ, तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुनाइट, राइट. हम कल फिर इंशाल्लाह फिर करेंगे द गेम बिटवीन लाहौर एंड पेशावर, which is basically a semi-final. The winner goes through and plays Multan Sultans in the final. So yeah, that's our show, guys. Thank you very much everybody for joining in. सबसे पहले थैंक यू हसान भाई, इवन दो आपकी टीम हारी, you could make it. तो सबसे पहले आपका थैंक यू, and to all our audience, thank you so much for joining. Thank you Shafqat, thank you Jibran bhai. We'll see you guys tomorrow, same time after the game, and we'll be covering the post-match analysis. So until then, it's goodbye from PSL Nama. And yeah, see you guys tomorrow.
अस्सलाम वालेकुम।